ابا سند ابن عقیل تم کہاں ہو؟ اس پاگل لڑکی نے پتا ہے کیا کیا ہے؟ حاکم کے بھائی کو مار دیا ہے اور اس کی لاش کو شہر لے کر آئی ہے. آؤ دیکھتے ہیں. پھر بعد میں، ابھی رہنے دو. امام نے تمہیں طلب کیا ہے. آج کل یہاں اور ہر جگہ لوگ یہ شور مچاتے ہیں اور مسلمانوں سے امن و آتشی کو چھین لیتے ہیں. ان لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کہ بلا سوچے سمجھے اپنے اضطراب کو ظاہر نہ کریں. شور مچانے والے افراد سے دور رہیں. مقام ولایت شور مچانے والوں کی محتاج نہیں ہے. وہ کون ہے جس کی تلوار علی ابن ابی طالب سے زیادہ کاری ہو؟ اللہ کی قسم، ولی خدا علی مرتضی منکروں کے مقابلے میں بذات خود سینہ سپر ہو گئے. تلوار کا سہارا نہ لیا. یہ وسیع رسول کا خون تھا جس نے اپنے خون سے ولایت کے معنی کو محراب میں عبارت کے طور پر تحریر کیا، نہ کہ کوئی اور. خون علی لفظ ولی کا ثمر ہے. ہمارے شیعوں سے کہہ دو کہ ولایت کے مفہوم کا محراب ترجمانی کر رہا ہے. حسین ابن علی کی صدائے حل من ناصر ینصرنا پر لبیک اس طرح نہیں ہوتا. اے ہمارے شیعوں، تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے جو دوسروں کو بھی ہماری طرف متوجہ کرے. عبادت سے ہرگز کوتاہی نہ کرو. درد مندوں اور مستحقین پر مہربانی کرو. صداقت و طہارت کو اپنے دلوں میں جگہ دو. ہر شے کی محبت و خواہش پر ہماری محبت و خواہش کا احترام کرو. اللہ تمہارا حافظ و مددگار. سنا ہے تمہارا سفر کرنے کا ارادہ ہے. مجھ سے بات نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم جیسی خود سر لڑکی سے بات کرو. مگر کیا کیا ہے میں نے؟ کچھ نہیں. کچھ نہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اب مجھے تمہاری حفاظت کی کوئی فکر نہیں رہے گی. میں نے تو تم سے اس طرح کی کوئی درخواست نہیں کی. ہاں، اگر تم کرتے بھی تو قبول نہ کرتا. مجھے مولا نے حکم دیا تھا، اس لیے اس وظیفے پر عمل پیرا تھا. میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں. کر سکتی ہو؟ ہاں، کر سکتی ہوں. جس دن ماری گئی اس دن اس جملے کی وضاحت تم سے پوچھوں گا. یا پھر میں تم سے پوچھوں گی. مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی. کوئی چیز تم جیسی خوبصورت لڑکی سے بات کرنے سے بدتر نہیں ہے. بولو، ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہمیں؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ہمارا راستہ کس طرف ہے. ہمارا راستہ؟ ہاں، ہمارا راستہ. اگر فیصلہ ہو کے ساتھ جانا ہے تو بہتر ہے کہ میں. آخر کس نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ میں نے. تم نے؟ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ اس سفر میں تمہاری رہنمائی کروں. تم رہنمائی کرو گی؟ ہاں. لیکن یہ یاد رکھو کہ میں اتنی جلدی واپس نہیں آؤں گا. مجھے اپنے ساتھ آنے دو. تمہیں کوئی تکلیف نہ دوں گی. نہیں. کیوں؟ نہیں لے جا سکتا. تمہاری مدد کروں گی. کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ تم میرے ساتھ نہیں جا سکتی ہو. ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن ہے؟ اگر میرا دل چاہے گا تو جاؤں گی. اور لڑکی، ہم دونوں مسافر ہیں، یعنی ایک دوسرے کو نہیں جانتے. یعنی میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یقیناً نہیں ہے. کیوں نہیں سمجھ رہی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم دونوں نامحرم ہیں. ٹھیک ہے تو محرم ہو جائیں گے. محرم ہو جائیں گے؟ کس طرح؟ میں نے تمہیں اپنے شوہر کے طور پر منتخب کر لیا ہے. تم نے منتخب کر لیا ہے؟ ہاں. پتہ ہے کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں. کیا اب تک کبھی سنا ہے کہ لڑکی نے شادی کا پیغام دیا ہو؟ کیوں نہیں سنا ہے؟
کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں، وہ چاہتی ہے کہ تم اس کے شوہر ہو جاؤ، البتہ اگر تم راضی نہیں ہو تو پھر اب مثلا ان لوگوں کے چہرے پر خلیفہ کی موت پر تم کیا اثر نہیں دیکھ رہا؟ زبان بند کیے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. ہاں میرے سردار، یہ فطرت ناروں اور خوشیوں کی طرف مائل ہے. اگر میں ان کو حکم نہ دیتا کہ آپ کا کوئی خیال کرے تو ناروں اور خوشیوں کے اظہار سے پوری فضا گونج رہی ہوتی. خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہ بھی میرے باپ کے مرنے پر. نہیں، بلکہ امیر کے بیٹے کے لیے ہارون کو فراموش کیا جا چکا ہے، اور اب خوش آمدید فرما برداری جہاں خلیفہ کے لیے ہے. جو تم کہہ رہے ہو کیا وہ سچ ہے؟ ہاں، یہ سچ ہے. اگر مناسب سمجھو تو مسکراؤ اور ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، پھر دیکھو. نہیں، اس وقت مناسب نہیں سمجھتا. البتہ مصلحت یہی ہے جو آپ بہتر سمجھیں کہ کس طرح ان لوگوں کے دلوں پر حکومت کی جا سکتی ہے. کیا آپ اس غلام کو جانے کی اجازت دو گے؟ کیا اس پریشانی کے عالم میں مجھے تنہا چھوڑنا چاہتے ہو؟ میں مطمئن ہوں کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. میں بھی آپ سے دوری کی تاب نہیں رکھتا. گھر پہنچ کر کچھ وقت اہل و عیال کے ساتھ گزار کر واپس آ جاؤں گا. جس قدر جلد ممکن ہو واپس آ جاؤ. تنہائی مجھے پریشان کر دے گی. اس سے پہلے کہ آپ کی استراحت ختم ہو واپس آ جاؤں گا. اللہ آپ کا نگہبان ہو. بابا رک جاؤ لڑکی. خلیفۃ المسلمین دنیا سے رحلت کر گئے ہیں. خاندان سہل سوگوار ہے، اس لیے ہمیں چاہیے خلیفہ کے سوگ میں کچھ ماتم و پرسہ کریں. امر، ابھی تک تم نے اپنی بیوی کو رسم و رواداری نہیں سکھائی. یہ میری بیوی ہونے سے پہلے فضل ابن سہل کی بیٹی ہے، اور اپنے باپ کے وجود کی برکت سے تمام کمالات سے آراستہ ہے. وہ تو آپ کی زیارت کی خوشی تھی جس نے اسے بچوں کی طرح حرکت کرنے پر مجبور کیا. موجودہ حالات پر کڑی نظر رکھو، اپنی بیوی کے ساتھ کم رہو، اور خلیفہ مرحوم کی مغفرت کے لیے فاتحہ پڑھو. اور فضل ابن سہل کو اس کی محبوب بیوی کے ساتھ تنہا چھوڑ دو. بس یہی مقصد ہے نا تمہارا بابا؟ فضل ابن سہل کی عمر دراز ہو. کیا ہوا؟ بات کرو.
मुझे यकीन है कि तुम हारून की मौत के गम में नहीं हो। तुम नहीं जानती कि इन चंद रातों में मुझ पर क्या गुजरी। कुछ ऐसी फिक्रों और परेशानियों ने मुझे घेर रखा है कि चाहने के बावजूद इनसे निजात हासिल करना मुमकिन नहीं। यहाँ तक कि मैं एक को दूसरे पर फौकियत भी नहीं दे सकता, और इससे बदतर ये कि अपनी किसी फिक्र को मैं अपनी ज़बान पर जारी भी नहीं कर सकता। इन फिक्रों और परेशानियों के तलातुम से मेरा दिमाग फटा जा रहा है। इन तमाम लम्हों में मैं इस सोच में था कि काश तुम होती जो मेरे दिल की बात को अल्फाज का जामा पहनाती और इनके मकसद को उजागर करती, और हमेशा की तरह मेरी आरज़ुओं को यकीनी शक्ल देती। तुम्हारी आरज़ुओं को अच्छी तरह जानती हूँ। अपनी परेशानी बयान करो। जब तक हारून जिंदा रहा ये खौफ था कि जल्दी या देर से मेरी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया जाएगा। अब जबकि वो मर चुका है, ये फिक्र है कि मैं अपने कदमों को किस तरह बढ़ाऊं और किसका साथ दूं कि एक तवील राह मेरी मुंतज़िर है। मामून से खौफज़दा हो? नहीं, वो पूरे तौर पर मुझ पर एतमाद कर रहा है, और मैं चाहता हूं कि जितना वक्त गुजर जाए ये एतमाद बढ़ता जाए। नहीं, मुझे मामून से कोई खौफ नहीं है। फिर अमीन से फिक्र लाहक है? अमीन? किस बेहुदा और नालायक का जिक्र कर रही हो? जुबैदा का। जुबैदा? ये औरत जो कि इंतहाई सहीन और चालाक और नहायत ही कुदरत सरवत रखती है, और जिसने पूरे बनी अब्बास को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है, उसके साथ क्या करूं? किस तरह उसे अपने रास्ते से हटाऊं? अब्बासी खानदान का क्या करूं? वो खानदान जिसने तमाम इस्लामी ममालिक में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रखे हैं। कभी मैं ये सोचता हूँ कि मेरी तमाम आरज़ुएं बेकार और बेहुदा हैं, और मैं कभी भी अपनी उस मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। और कभी उम्मीद होती है कि कामयाबी और शाही इक़्तिदार सब कुछ कदमों पर है। इन्हीं अफकार के हजूम ने मुझे परेशान कर दिया है, और मेरी आंखें पथरा गई हैं, और जो मुझे सुकून से रहने की इजाजत नहीं देती। इधर देखो। क्या कर रही हो? ये तो कुछ भी नहीं। अलबत्ता अगर कुछ सब्र करोगे तो ये कतरे लम्हा बलहमा मुझे मौत से करीब कर देंगे। ऐसा जख्म लगाओ कि बनी अब्बास की कुव्वत पारा पारा हो जाए और तुम्हारे लिए तस्खीर हो जाए। फज़ल कहाँ थे? मैं कितने अरसे से तुम्हारा मुंतज़िर हूँ। मैं दो काबिल एतमाद कासिदों की तलाश में था कि जो आपका पैगाम फजल इब्ने रबी तक पहुंचा सके। तो क्या मिल गए? हाँ, अम्र, रशीद, ये दोनों भाई मेरे बहुत करीब हैं। ये ताकतवर शमशीर सन के माहिर, बाहोश और समझदार हैं। अमीर सादे का पैगाम फजल इब्ने रबी और दूसरे सरदारों तक लफ्ज ब लफ्ज पहुंचाएंगे। लिखकर क्यों नहीं देते हो? इसलिए कि फजल इब्ने रबी इसको बतौर दलील आपके भाई के सामने रखकर आपके खिलाफ उसे उकसा ना दे। इसके लिए हमें वक्त चाहिए। सही कह रहे हो, इस तरह बेहतर है। हालात के मुताबिक फैसले करने चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसका मज़मून आपके सामने पेश करूं ताकि इसके मतन से आगाह हों। नहीं, सही है। मेरे लिए बेहतर वही है जो तुम कहो। चले जाएं।
अपनी हिफाजत करना। अल्लाह हाफिज। अगर तुमने मुझे परेशान न किया होता तो कुछ खाने पीने का सामान जमा कर लेता और हमें इस वक्त इतनी परेशानी न होती। कहाँ से लाई हो? बहुत है, अलबत्ता आंखों का खुला होना बहुत ही जरूरी है। जल्दी से इसे तैयार करो, सख्त भूखा हूँ। शिकार मैंने किया है, अब इसके बाद पकाना तुम्हारा काम है। ये मुनसिफाना तकसीम है, क्या इस तरह नहीं है? नहीं, पकाना औरतों का काम है। तो क्या शिकार भी औरतों का काम है? ठीक है, अगर तुम्हारे नजदीक यही इंसाफ है तो मुझे कोई एतराज नहीं। नहीं चाहिए। तुम पर हैरत है कि हर बात का जवाब तुम्हारे पास मौजूद होगा। वो देखो, हुकूमत के सिपाही। चलो चल निकले, सवार हो जाओ। नहीं, सब्र करो, सब्र करो, उन्होंने हमें नहीं देखा है। आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ कि मेरी इजाजत के बगैर कोई कदम न उठाया करो। मुझे किसी से इजाजत लेने की आदत नहीं है। आज के बाद आदत डालो। नहीं कर सकती। गलती कर रही हो। मुझे एक अहम काम करना है। तुम्हारी इस तरह की गलती सारे काम को खराब कर सकती है, लिहाजा जो मैं कहूँ वही करो, समझी? चलो सामान जमा करो। नहीं, जरूरत नहीं, मैं खुद जमा कर लूंगा। उठ जाओ, देखो तो कौन आया है। वजीर आजम, तुम लोगों को देखने के लिए आए हैं। दरवाजा खोलो। जरा ये मशल पकड़ना। कोजा फेंका, क्यों कोजा फेंका? कोजा फेंका, क्यों कोजा फेंका? बोलो, क्यों कोजा फेंका? बोलो। बस करो, बाहर जाओ। मुझे तन्हा छोड़ दो। वजीर आजम, मैं इनसे तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। खतरनाक है। ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मुझे मारने से इन्हें कोई फायदा नहीं होगा, अलबत्ता ये अपनी मौत को दावत देंगे। दरवाजा बंद कर दो।
मुझे पहचानते हो? नहीं पहचानते और ना पहचानना चाहते हैं। मेरा नाम फजल इब्न सहल है। अब हमने पहचाना वो मजूसी जो मुसलमान होने के बाद अल्लाह के बजाय शैतान के लिए काम करता है। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि अपने बारे में तुम्हारी राय दरियाफ्त करूं, वो मैं जानता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि तुम्हें खबर दूं। अपनी खबरों को हारून के लिए रखो ताकि कुछ दौलत और सरवत तुम्हें और मिल जाए। हम लोगों को तुम्हारी खबरों की जरूरत नहीं। सही कह रहे हो, मगर क्या करूं, हारून अब जिंदा नहीं रहा। तुम झूठ बोल रहे हो। तो क्या तुम्हारे ख्याल में हारून की जिंदगी में ऐसी बात करने की मुझ में हिम्मत है कि उसे मुर्दों में शुमार करूं? कब मरा? अब इस बात को छोड़ दो। अल्लाह उस पर लानत करे। लागो, हारून मर गया। हारून मर गया। क्या किसी ने सुना? हारून मर गया। हारून मर गया। हारून मर गया। क्या मेरी और बातों को भी सुनना चाहते हो या नहीं? अगर तुम्हारी बातें इस कदर दिलचस्प है तो बोलो, हमारे लिए खुशी का बाइस होगी। कबूल कर लिया? नहीं। मेरा ख्याल है कि सिवाय सोरश और बलवा के हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अपने बाप के जमाने में हमने यही कुछ किया। ये सीधे रास्ते पर चलकर नहीं, बल्कि हर उस रास्ते पर चलकर मिलेगी जो खिलाफत पर खत्म हो। ठीक है। क्या मुश्किल है? मुश्किल ये है कि ये लोग हारून, तुम्हें और अमीन को मुसलमान नहीं समझते। और तुम्हें? मुझे मजूसी कहकर पुकारते हैं। सुना है कि मेरे और अमीरुल मोमिनीन के सरदारों के लिए पैगाम लाए हो। हाँ हाँ। बोलो, क्या पैगाम है? मैं तुम्हारे लिए पैगाम लाया हूँ और मैं मोहतरम सरदारों के लिए। पहले मेरे पैगाम को पढ़ो। इजाजत दें तो तन्हाई में कुछ अर्ज करूँ। हमने अमीरुल मोमिनीन के सरदारों से अहद किया है कि कोई राज एक दूसरे से खुफिया नहीं रखेंगे। लेकिन मुझे हुक्म दिया गया है कि पैगाम सिर्फ आप तक पहुँचाऊँ। अलबत्ता अगर आप चाहें तो इनको बता सकते हैं। नहीं, मैं इस खेल को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मुमकिन है कि बाद में ये एहतमाल पैदा हो कि मैंने मामून से कोई खुफिया अहद पैमा किया है। फजल इब्न सहल के भेजे हुए हो ना? कोई पैगाम दो या फिर हुक्म देता हूँ कि तुम्हें शरंगेजी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाए। इन दोनों को ले जाओ। अच्छा छोड़ो, बोलते हैं। ठीक है, बोलो। आए बिन रवि, तू बेहतर जानता है कि हारून मुझे खुरासान की हुकूमत के लिए मुस्तक़िल समझता था, इसलिए उसने सिपाहियों की रहबरी मेरे सुपुर्द की।
तुमसे ये चाहता हूं कि मेरे सामने गर्दन इताअत के साथ झुका दो और जिस कदर जल्द मुमकिन हो फौरन ही सिपाहियों का लश्कर मेरी तरफ रवाना करो। अलबत्ता मैं खुद तुम्हारे इस ओहदे के लिए खलीफा से सिफारिश करूंगा और तुम्हें जरा बराबर भी तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। हमेशा मेरी हिमायत तुम्हारे साथ होगी और तुम्हारी खिदमत का तुम्हें भरपूर सिला दूंगा। खत्म हो गया? हाँ, बहुत अच्छा। अब तुम बोलो सरदारों के लिए क्या पैगाम लाए हो। अमीर के बेटे मामून ने तुम लोगों को सलाम भेजा है और कहा है कि तुम लोग साल साल से मेरे बाप के हमरकाब रहे और शमशीर जनी की। तुम लोग मरहूम खलीफा की ख्वाहिशात और तामीलात और कलवी इस्तराब से अच्छी तरह आगाह हो। उसने अमीन को अपनी जानशीनी के लिए मुंतखब किया और मुझे उसका जानशीन बनाया। अहदनामा लिखकर खाने खुदा पर आवेजा किया और मुझसे और तुम सब लोगों से इस अहदनामे पर कारमंद रहने की तलकीन की। अगरचे मैं मोहम्मद से बड़ा हूँ, मगर चूंकि मैंने कसम खाई है लिहाजा वफाए अहद के अलावा कोई और चारा नहीं है कि अमीन की खिलाफत के सामने सरनिगू हो जाऊं। अमीन खलीफा है और उसकी इताअत वाजिब है। अलबत्ता मैंने और तुम लोगों ने सिर्फ अमीन की खिलाफत पर कसम नहीं खाई थी, बल्कि अहदनामे के दीगर नुकात भी उसमें शामिल थे। लिहाजा अब तुम लोग वफा करो और अपनी कसम को याद करो और फौरन मेरी जानिब चले आओ। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है और तुम्हारे कंधों पर इसके अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं है। वस्सलाम। हम तक मामून का पैगाम पहुंचाने के लिए एक आदमी काफी है। तुझे कत्ल कर दूंगा। मामून तक ये पैगाम पहुंचा देना कि अगर इस वक्त तुम भी यहाँ होते तो ये खंजर तुम्हारे पेट में उतार देता। सुना क्या कहा? अब जाओ हमारा पैगाम पहुंचा दो। कत्ल कर दूंगा तुझको, मुझे छोड़ दो। कत्ल कर दूंगा तुझे, मुझे छोड़ दो। भाइयों भाइयों, आपकी मोहब्बत किसी से छुपी हुई नहीं है। आप जरा सोचें कि आप लोग जो कुछ देख रहे हैं क्या अली इब्ने मूसा रजा पर पोशीदा है? क्या आप लोग ये समझते हैं कि वो इन बदलते हुए हालात से बेखबर है? लेकिन इस मुल्क में अली के चाहने वाले बिखरे हुए हैं। यही अहम मसला है कि अली के मानने वाले बिखरे हुए हैं। न सिर्फ जिस्मानी तौर पर मुंतशिर हैं बल्कि रूहानी और फिक्री तौर पर भी मुंतशिर हैं। क्या ये वही इंतशार नहीं है जिसने अली इब्ने अबी तालिब को हमसे छीन लिया था? क्या ये वही इंतशार नहीं है जिसने हसन इब्ने अली के जिगर के टुकड़े कर दिए थे और हुसैन इब्ने अली को खाक और खून में गलता कर दिया था? क्या ये यही इंतशार न था कि जिसने ज़ैद इब्ने अली के टुकड़े टुकड़े करके आग में जला दिया था? वो चीज जिसके अली इब्ने मूसा रजा मोहताज है वो मोमिनों का इत्तेहाद और यकजहती है। मत मारो, जब आप देखो कौन है।